मेरे नज़रिए में महिलाओं के लिए समाज में किस तरह के बदलाव होंगे। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। मैं इस समय अपने प्रयागराज के एक व्यक्तिगत टूर पे थी, तो मुझे प्रयागराज से भी लाइव करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी सभी बहनों से मेरी यही गुजारिश है, अपने को मजबूत करिए, सक्षम बनाइए और स्वावलंबी। थैंक यू रत्ना जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल सबसे पहले तो आप सभी को वुमेंस डे की बधाई देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आज के इस समाज में हमें भी बराबरी की जगह मिलेगी और हमें पूरा सुरक्षात्मक माहौल मिलेगा। हम भी अपनी इच्छा से किसी भी समय कहीं पर भी जा सकेंगे। और आखिर में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उम्मीदों की उड़ान मैं भी भरना चाहती हूँ, उम्मीद का एक दिया मैं भी जलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। Hi guys, I'm Priyanka Kaushal. I was asked for one change that I would want in the society towards women on the occasion of this International Women's Day. Well, one thing which I find very strange and something which needs to change is the vast difference in the attitude of the people towards a married woman versus a single woman. In fact, it's quite rampant and something which even I have experienced many times. A married woman of a certain age is addressed with more respect than a single woman of the same age by both men and women, whether it's at home, office, or the social life, regardless of their professional, social, or personal achievements in life. If you are a single woman in your 30s, then you're seriously judged. And if, God forbid, if you've touched 40 and are still single, then you are in trouble. So, no matter how liberated we claim to be today in terms of our perspective towards women's rights, freedom of choice, their privacy, their place in a society, we are still stuck with this, age-old patriarchal belief systems, which convinces us that being married is some sort of achievement and provides a woman some kind of moral high ground over other single women. And that is something which I find ridiculous. Happy Women's Day to all you wonderful women out there. This Women's Day, I would like to request each one of us that हम चाहते हैं कि सब औरतों को, सब वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिला जाए। बट कई बार देखा गया है या कई जगहों पे हम देखते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती। तो मुझे चाहिए सबसे बड़ा चेंज जो हम ला सकते हैं वो ये कि each woman respect the other. That is how we can gain respect from others as well. So let's support and help each other grow with love, happiness and prosperity. Happy International Women's Day to every woman playing a different role around the globe. There are a lot of things that I and a lot of women wants to change in our society, but the main and the basic thing is about our security, every woman's security, because every day we carry a thread with ourselves to office, to wherever we go. So I just want to say one thing to all the boys, all the men out there, to make every woman around them, make them feel secure. That's all I want for this Women's Day. Thank you so much. Hi, this is Smita. The one thing which I feel is most important, which needs to be changed in the society for women, is when society starts believing that the husband can pursue his dream degree or startup after marriage, relying on the fact that his wife can take care of the household. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि हमें केवल 8 मार्च को ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हर महिला का सम्मान व आदर करना चाहिए। इस देश की नई पीढ़ी के युवा होने के नाते मेरे देश और समाज से अपेक्षा होने के साथ ही साथ मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि हर भारतीय लड़की को सक्षम व समान अवसर मिले पढ़ने का। मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने करियर को आगे बढ़ाने में एकदम सक्षम हो व देश की उन्नति में हर महिला एक समान भागीदार बने।
मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी लड़की के पढ़ाई में कोई भी रुकावट या बाधा नहीं आनी चाहिए केवल क्योंकि वह एक लड़की है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन हमारा भारत एक जेंडर इक्वल देश कहलाएगा और मैं एक जेंडर इक्वल देश की निवासी बनूंगी। हैप्पी वुमेन्स डे। मुझे अक्सर वुमेंस डे सेलिब्रेट करना बड़ा मज़ा आता है। अच्छा लगता है कि यार मैं खुद को इंजॉय कर रही हूँ और प्राउड फील होता है। उस दिन मैं थोड़ा सा इतिहास के कुछ पन्ने भी पलट लेती हूँ और उन महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने कई बैरियर होते हुए भी, कई तरह के प्रॉब्लम्स से गुजरते हुए हमें हमारी हिम्मत का परिचय करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़, कुछ ऐसी बातें हैं जो जहाँ लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है। जैसे एज ए एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जब मैं देखती हूँ कि या जो फीमेल सेंट्रिक फिल्में आती हैं तो लोग तो कई तरह की बातें करना शुरू कर, अरे फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, उसमें उसे ना वो मुकाम नहीं मिलता जिस तरह से एक हीरोइज़म वाली फिल्म को मिलता है। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स उसे उस तरह से देखें। फिल्म होती है, मेल फीमेल दोनों ही तो एक्टिंग करते हैं, तो बस एक ही बदलाव आ जाए ना तो क्या कहना है। Hi, my name is Anuthan. One thing I would like to change in society is that women should be treated respectfully. This can only come in from our homes when we teach our sons how to treat women in a respectable manner. So mothers should tell their sons to treat women with utmost respect since childhood. That's how we can bring a humongous change in the society, and that's how we can contribute to the society. By imparting such beautiful values in your sons and that which can help them be a better man tomorrow. Thank you. दोस्तों, महिलाओं के हकों के लिए अक्सर बात संघर्ष की जाती है, पर मेरा मानना है कि संघर्ष के साथ साथ उन्हें इल्म भी चाहिए। इल्म दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेने का। उन्हें सीखना होगा कि कैसे अपनी भावनाओं से बाहर आ दिमाग से काम लेते हुए वे अपनी चाहतों को पूरा कर सकती हैं, अपने रास्ते बना सकती हैं। जिस दिन वे ये सीख जाएंगी उस दिन संघर्ष चाहे घर के भीतर हो, चाहे वर्क प्लेस पर या फिर सड़क पर, उन्हें कामयाबी मिलने लगेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। On this Women's Day, I would want to speak for all the women who end up being single in their life and whose life becomes miserable, not just through financial aspect but also in terms of safety. There are many reasons for which women end up being single. Either the husband leaves them or passes away, the in-laws torture the women a lot, but they have nobody who can fight for them. And there are many women who at even old age end up being alone. So for these women, I would really want there to be some kind of shelter home where they can go and live peacefully. It's very important today to have these kind of homes for them, for even single mothers who can raise the children safely and peacefully. आज महिला दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त नारी शक्ति को नमन करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि समाज में महिलाओं को मान, सम्मान, आदर, इज्जत मिलना चाहिए और इसकी वो सही मायने में हकदार भी हैं। और ये मुहिम हमें घर से ही शुरू करनी पड़ेगी, परिवार से ही प्रारंभ करनी होगी। नारी को या बेटी को, बहू को बराबर का नहीं बल्कि प्रथम स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए एक महिला को ही पहल करनी होगी, क्योंकि घर में बेटी या बहू के साथ यदि अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो कहीं ना कहीं माँ ही जिम्मेदार होगी ना। बात वही, हमें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़ना होगी। एक महिला को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़ना होगी और ये अच्छी बात है कि लड़ाई हमने आरंभ कर दी है।
महिलाओं से मेरा यही निवेदन है कि वे स्वयं को कमजोर ना समझें। हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे हैं और पहले से भी रही हैं। अपने मन को मजबूत बनाए रखें। आप बहुत सक्षम हैं। अपने मन को मजबूत बनाएं, कभी भी हार ना माने, क्योंकि मन की जीत ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप मन से सक्षम रहेंगे तो आप हर लड़ाई लड़ सकते हैं। प्रतीक हूँ प्रेम, वात्सल्य और समर्पण का, निश्चल, सौम्य, प्रखर और कभी तेज रूप शक्ति का। मैं नारी हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रत्ना जी ने जो प्रश्न किया है कि महिलाओं को लेकर क्या बदलाव चाहती हूँ, तो मैं महिलाओं को लेकर के भागीदारी का बदलाव चाहती हूँ। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि भारतीय चुनाव प्रणाली में महिलाओं को 50% की भागीदारी मिले, क्योंकि महिला अगर नेतृत्व करेगी तो परिवार, समाज, राष्ट्र और राज्य की उन्नति में भागीदार बनेगी। क्योंकि महिला सशक्त है तो राष्ट्र सशक्त है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को 50% की भागीदारी मिले चुनाव प्रणाली में। धन्यवाद। It's a wonderful day, and the changes that I would like to see in society for women is, the first and foremost is safety. So we must have a system where the society is safe for children, for women, and they can travel at any time, whether it's day or night. And especially if we talk about careers, so women have so many roles to play. So the change in the system should be like there should be more funding opportunities after the career break for children, especially the women who are in science or in different career. Like I'm a scientist, so I would like to say what we can do, as scientists. So there are less women in science, though now the number of women who were there before 30-40 years, and if you compare it now, there are many women in society who are working in different fields, but still an equal opportunity is lacking. So there should be no gender biasness, and women should be given equal opportunities in every field. And as women, we must always stand up for what is right, and we must speak up as women. Like the change will come only when we raise our voice. If we just come to whatever is happening, even if it is wrong, if you compromise on the on those aspects also, that is also wrong. मेरा नाम रानी है और मैं कस्बा पुरकाजी, ज़िला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। और हम महिलाएं ये चाहते हैं कि जो भी घरेलू हिंसा का केस है या 498 का है दहेज उत्पीड़न का, तो वो केस में क्या होता है कि महिलाओं की उम्र बीत जाती है और जो पुरुष होते हैं वो अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। तो कानून व्यवस्था कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जिससे महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर वो केस फाइनल होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटती काटती परेशान हो जाती हैं। जो मर्द हैं, पुरुष हैं, वो अपना शादी करके बैठ जाते हैं। तो कानून व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, 1 साल में फाइनल हो जाए। मेरा नाम फराना है। मैं ये चाहती हूँ कि हम औरतों के लिए सरकार फ्री शिक्षा दे ताकि हम पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्त्रियों के संदर्भ में अगर समाज में बदलाव की बात की जाए तो आज सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का है। रेप, अपहरण की घटनाएं तो रोज़ ही खबरों में आती रहती हैं, लेकिन आए दिन सड़कों पर अब भी महिलाओं पर फप्तियां कसी जाती हैं। लड़कियों को ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर उनके साथ शारीरिक छेड़खानी की जाती है। इस प्रकार महिलाएं शारीरिक और मानसिक तौर पर हर जगह पीड़ित होती रहती हैं। मैंने यूरोप और अमेरिका में देखा कि वहाँ कोई भी आदमी किसी भी औरत को गंदी निगाह या कामुकता या लौलुपता की दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन भारत में, ख़ास तौर पे भारत के विकसित होते हुए शहरों में यह समस्या बड़ी विकराल होती जा रही है, जिसकी वजह से महिलाएं
अगर काम काज के लिए बाहर निकलती हैं और अगर किसी वजह से उन्हें लौटने में देर हो जाती है तो ना केवल वे खुद चिंतित रहती हैं बल्कि सारा परिवार भी उनके लिए परेशान रहता है। इसीलिए इस समस्या का निदान होना चाहिए। सरकार को कड़े कानून बना के ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं उनको कड़ा से कड़ाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम शमा है। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हम औरतों के लिए कोई रोज़गार ऐसा दे जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सके, हम घर में बैठ के 2 पैसे कमा सकें, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें। और हम बहुत गरीब हैं। औरतों के लिए मैं समाज में कैसा बदलाव चाहती हूँ, तो क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मुस्लिम औरतों की जो लीगल राइट्स हैं इक्वालिटी के, वो इंश्योर करे, समाज आगे आए, बात करे, मुस्लिम औरतों को सुने और जो मर्द ठेकेदार बने रहते हैं हर इशू को लेकर के वो बंद हो। आप औरतों को जगह दीजिए अपने मंचों पे, हर तरह के मंच पे, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, माइनॉरिटी के नाम पे हो या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, सब में औरतों को जगह दीजिए, उनको सुनिए और सबसे पहले उनके लीगल राइट्स को इंश्योर कीजिए। फिर हम सोसाइटल जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर पैरिटी की भी बात कर सकते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पे मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे समाज में किस तरह के बदलाव होने चाहिए औरतों के प्रति। वैसे तो हमारे संविधान ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, बट सही मायने में उसका उपयोग नहीं हो पाता। अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो जो रिकॉग्निशन, जो रिस्पेक्ट और जो वैल्यू एक मर्द को मिलता है, उसके काम को मिलता है, वो हमारे समाज में औरतों को नहीं मिलता है। तो हम सभी को मिलकर इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। वुमेन एम्पावरमेंट से यही मुराद है कि यदि कोई औरत अपनी पसंद, नापसंद, खुशी और दुख और कोई भी ख्याल, कोई भी सोच समाज के सामने, अपने घर वालों के सामने, परिवार के सामने रख पाती है, चाहे फिर वो सोच उसकी घर में रहकर हाउसवाइफ बनने की हो या जॉब करने की हो या कुछ भी ना करने की हो। और क्या ये मौका हमने अपने समाज की महिलाओं को दिया है या नहीं? और अगर नहीं तो हमारे समाज को ज़रूरत है कि ऐसा बदलाव हमारे समाज में लाया जाए कि औरत बिना झिझक के अपनी पसंद नापसंद को समाज के सामने रख सके। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीसा परवानी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बोलो, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हमारा हक जो बनते हैं नहीं मिलते, तो इसलिए हम 8 मार्च के हम नहीं मनाते हैं, इसलिए कि हमारा जो हक बनती है हमको नहीं पहुँचते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हक जो है वो दे दें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी जीना चाहते हैं मगर अपनी हक के साथ जीना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू ऑल वीमेन आउट देयर। समाज में महिलाओं के लिए हम क्या बदलाव चाहते हैं उसके ऊपर मैं कहूँगी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सारे फैक्टर्स की तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। उसमें से 2-3 हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, पूरे दुनिया में अकेली घूमती हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर एक वुमेन को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए दुनिया देखने का, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। दूसरा, हर एक लड़की को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए, चाहे वो डिसीजन एजुकेशन को लेके हो, चाहे शादी को लेके हो, चाहे अपना जीवन आगे किस तरह से गुजारना है उसके ऊपर हो। तीसरा, विमेन रिस्पेक्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कई बार हमारे समाज में जितना पुरुष को महत्व और सम्मान दिया जाता है उतना एक स्त्री को, महिला को नहीं दिया जाता। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये विश है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज में वुमेन को सबसे पहले सम्मान और महत्व दिया जाए। आज के दौर में महिलाएं और लड़कियां दफ्तर में भी काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। ऐसे में उनके सेहत पर बहुत असर हो रहा है, तो उन्हें महिलाओं को सशक्त रहने के लिए योग करने की ज़रूरत है और हमारा भी यह कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य भी यही है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए हम घर में भी ऐसा वातावरण
उत्पन्न करें और समाज में भी उनको ऑफिस में इस तरह की सहूलियत दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप सेहत का ख्याल रख सकें और तंदुरुस्त रह सकें और महिला सही मायने में महिलाएं सशक्त और सबल हो सकेंगी। धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं ने हम बहुत सारी महिलाओं के विचारों को आपने एक साथ एक माला में गूंथने का काम किया। समाज में हम लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर अल्लाह ताला ने औरत को अपनी सृष्टि निर्माण में, अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक़ में औरत को सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा संयम रखने वाली, सब्र करने वाली और कुर्बानियाँ देने वाली, उनके अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियाँ पैदा की हैं। तभी वो सृष्टि को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल है और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, किसी तरह से किसी भी शक्ति में वो कम नहीं है। और हम लोग सदियों से धार्मिक किताबों में या इतिहास के पन्नों में अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, वीरांगनाओं को, उनके गाथाओं को सुनहरे पन्ने में दर्ज होते हुए देखती आ रही हूँ। तो हम बदलाव चाहते हैं कि आज खेत में अगर किसान महिला है तो वो अपना रोल पूरी तरह निभाती है। अगर हम कल्पना चावला की तरह नासा में जा रहे हैं तो वो अपने इतिहास के पन्नों में वो भारत का गौरव बढ़ाती है। तो हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए। Looking at the current situation that we are seeing in the world today, I would like women to play a bigger role in the politics and the governments of the countries. And because I believe that women can bring in more love and compassion and more peace in the world. And that's the change I would like to see. मेरा नाम है रामावती। मैं महिला दिवस मैं इसको कहते हैं कि नशा ख़त्म हो जाए। मेरा जीवन ऐसा नशा से बर्बाद हुआ है, अब ऐसा ना हुए कि ये लोग बर्बाद हुए। मैं भारत की युवा पीढ़ी हूँ और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व जानती हूँ। अक्सर हम लैंगिक समानता, सामाजिक समानता तथा पर्यावरण परिवर्तन के संबंध वो महत्वपूर्ण कड़ी को समझ नहीं पाते। मेरा मानना है कि लैंगिक समानता के बिना एक स्थायी भविष्य हमारे हाथों से बाहर है। महिलाओं और लड़कियों को भी जलवायु संकटों के सबसे बड़े प्रभाव पड़ते हैं। आज भी गांव में काफ़ी लड़कियों महिलाओं को कई कोस पैदल चलकर ईंधन, पानी, भोजन, लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है। इस कारण मैं मानती हूँ कि विश्व की आधी आबादी को शामिल बिना किए एक स्थायी भविष्य को प्राप्त करना और पर्यावरण परिवर्तन को रोकना असंभव है। महिलाओं में बदलाव की सोच के लिए पुरुषों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो लेडीज़, जो औरतें घर का काम करती हैं वो एक तरह से घर की अर्थव्यवस्था ही नहीं, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। उनके पास ना कोई छुट्टी होती है, ना उन्हें कोई वेतन मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो 24 घंटे घर के कामों में लगी रहती हैं। इसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए कि आपका सिर्फ बाहर जाके पैसा कमाना ही योगदान नहीं होता। घर का काम, घर की जिम्मेदारी, ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। যে যা চাইবে সেই পুরো হবে। আমি তো তোমরা সবাই মিলে হাতে থাকো, চেষ্টা করো, যুক্ত থাকো। এইটা মহিলাদের ক্ষমতা অধিকারের জন্য নারী দিবস, তো এটা আমরা প্রতি বছর পালন করব। আরেকটা কথা বলে দিই কি আমরা এর পরের বার থেকে আমি একটা করে सबसे पहले तो मैं महिला दिवस पे जो साल में एक दिन के लिए मनाया जाता है उसकी बहुत शुभकामनाएं दूंगी अपनी बहनों को। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इक्वलिटी के लिए क्या हमें करना चाहिए, तो सरकार काफ़ी काम कर रही है और बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन अभी बहुत और करने की ज़रूरत है।
क्योंकि जो अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो तो काफी कुछ आगे बढ़ गई हैं, लेकिन समाज में अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बदलाव आने की आवश्यकता है। This International Women's Day, let us change as a society and normalize breastfeeding. Let us dedicate it to our mothers. We all breastfeed as babies, but a mother, if she has to breastfeed in public, she feels judged. Let us change this. Let's give women the freedom to breastfeed their babies whenever and wherever required. Happy International Women's Day. आदाब। ख़वातीन के आलमी दिन यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे पर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बस इशरत आफरीन साहिबा की एक नज़्म पेश करूँगी, मुलाहिज़ा फरमाइए। ख़वातीन के आलमी दिन पर मैंने अपनी बेटी को अपनी ताज़ा नज़्म सुनाकर दाद तलब नज़रों से देखा। उस पर उसकी आँखें ऐसी तंज भरी मुस्कान लिए थीं, जैसे मुझसे कहती हो, माँ तुम कितनी झूठी हो। शुक्रिया। Hi everyone, I am Dr. Neelam Banerjee. On the occasion of International Women's Day, I would like to convey to all women to be self-confident and believe in themselves. We are living in an era where we are striding towards gender equality, where men and women should be treated equally both inside and outside their homes. Now more and more women are coming out and working shoulder to shoulder with men in each field. But still lots need to be done. We all know that most of us are not able to live life which we should be living. Family and society in general has to be more tolerant and more respectful towards the choices she makes in her life and help her achieve the goals she wants to achieve in life. Only then we can have sustainable. Assalamu alaikum. On the eve of this Women's Day, I congratulate all the females of the world and wish you a very happy Women's Day. Today, on this auspicious day, I make a wish to Almighty Allah that no girl child dies in the womb of her mother. There should be no gender bias. Please appreciate and celebrate the birth of a girl child. The decreasing sex ratio at birth is very, very alarming. There are stringent laws to deal with it, but unfortunately, it is not following up. So, it is a humble request that let a girl child be born. Give her the confidence, empower her, that she lives with dignity. Give her wings that she soars into this world. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Shireen Sherwani. A happy Women's Day to all of you. I would like to say that two things can bring about a major change in a woman's life, and that is the education and the finance. Women should be given equal opportunities for education, and they should seek financial independence. Thank you. Women are an integral part of the society. Therefore, if women bring about certain changes in their life, then the perception of society towards them is bound to change. Women will have to reinvent themselves to see positive, sustainable changes in their life. They'll have to realize that they are strong, they are powerful, and they'll have to learn to take their weaknesses in their stride. They'll have to accept that it's okay to not to be okay at times, to be imperfect, to be selfish, to be self-centered. Because if they are healthy, mentally, physically, socially and emotionally, then only they'll be able to look after their loved ones and they'll be taken positively. And also, women have to raise their voice and not to sit silently if there are issues, if there are problems. And women have to support each other. They have to amplify other women's voice. They also have to learn to share workload. And it's always said that collective actions are more powerful. Hello everyone. Thank you so much for providing me this opportunity to voice my opinion and thoughts.
First of all, I would like to tell you all that you are one of the most amazing and beautiful creature in this world. It is through your dealings and your behavior, when you combine your softness and courtesy with your firmness, level-headedness and wiseness, you can leave a tremendous mark. We need more of you coming forward. We need more of you actively serving the society, coming in each field and ensuring that you participate and contribute within those fields. That is when I truly believe you can do and make changes within the society. Thank you. नमस्कार, मैं हिना कुमावत, मैं पत्रकार हूँ और आज सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिन एक खास दिन का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें खुद को इतना खास बनाना चाहिए कि हर दिन ही हमारे लिए खास हो जाए। अक्सर हम बदलाव की डिमांड करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बदलाव की डिमांड करने से ज़्यादा बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। अगर आप लड़की की माँ हैं तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप बचपन से ही इस तरह के संस्कार दें कि समानता जो है महिला और पुरुष की, वो उसे बचपन से ही समझ में आए। ना सिर्फ माँ की, अपनी महिला दोस्त की, पत्नी की, बहन की, वो सभी की उतनी ही रिस्पेक्ट करें। ये जो समानता और असमानता की बात है हमारे समाज में, जब ये खत्म हो जाएगी, पुरुष और महिला एक समान, हर कोई जो है उन्हें समान नजरों से देखेगा, तो समाज की आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी मिलकर इस बदलाव के लिए जो है कदम उठाएं। लो, फिर आ रहा है 8 मार्च यानी महिला दिवस। आज़ादी के पहले से ये महिला दिवस मनाया जा रहा है और ये साल तो आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। आज देश भले आज़ाद हो गया है, लेकिन क्या आधी आबादी अब भी आज़ाद है? कोई भी वर्ग, समुदाय, धर्म हो, जब बात आती है आधी आबादी के हक की, तो वहाँ आज भी लड़कियों को पुरुष प्रधान समाज गुलाम बनाए रखना चाहता है। हर एक लड़की अपने स्वतंत्रता की लड़ाई हर दिन लड़ रही है और अपने हक अधिकार के लिए लड़कर ही उसके हाथ कुछ लग पा रहा है। ये 8 मार्च हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। मेरा नाम मीना कुमारी है और मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि महिला दिवस की बधाई हो और नशा मुक्ति और समाज नशा मुक्त बने। हाँ, समाज नशा मुक्त बने और नशे से मेरा जीवन खराब हुआ है और ऐसा नशा मुक्त हो जाना चाहिए। समाज नशा मुक्त। ठीक। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम महिलाएं दिल में ममता, भावों में करुणा लिए अपनी सब जिम्मेदारियां बखूबी निभाती चली जाती हैं। हमने ये प्रमाणित कर दिया है कि हम ही समाज का केंद्र बिंदु हैं। हमारे बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने हर क्षेत्र में खुद को प्रमाणित कर दिया है। पर पता है, अभी भी इस पुरुष प्रधान समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने आगे, अपने से सशक्त, अपने से स्ट्रॉन्ग किसी भी महिला को अपनाना, एक्सेप्ट करना, उसे उसका स्थान देना। समस्या थोड़ी पेचीदा है, पर हमें अपना रास्ता बनाना आता है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सशक्तिकरण कर हम इस समस्या पर भी पार पा लेंगे, क्योंकि यदि हम जिद पर आ जाएं, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आओ एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का सशक्तिकरण करें और आगे बढ़ें। हैप्पी वुमेन्स डे। Hello everybody, my name is Nabila, and one change which I want in our society regarding women is, let us stop judging a woman in terms of a child upbringing. We blame, we question, we judge mostly a mother related to a child's upbringing. So my point is, a child is not raised by mother alone. Father is equally responsible for a child upbringing. It should be a collective work. It should be a team effort from both the parents, mother and father. So why are we questioning or blaming mother if in case child is not doing good in life? So let us stop just questioning mother or blaming a mother in terms of child upbringing.
नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो बीते कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु आज भी हमारा समाज महिलाओं को लेकर कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित है। महिलाओं को समाज में पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए एवं महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचारधाराओं में बदलाव होना चाहिए एवं प्रत्येक महिला को समाज में सुरक्षा एवं सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, देखिए, महिलाओं को वैसे कहा जाता है कि हर जगह बराबरी का हक है, लेकिन अभी भी वो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में जो है महिलाओं को हर जगह पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्हें जो आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी किस चीज़ की? जैसे कि वो कहीं काम करने जाना चाहती है या वो कुछ आगे पढ़ना चाहती है, वो कुछ भी अगर कुछ किसी भी सही वे में जाकर कुछ करना चाहती है तो उनको उस चीज़ की आज़ादी मिल जाए एंड उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए, जो कि आज भी नहीं मिलता है। काफ़ी हम कहते तो हैं कि वो मिल जाएगा या महिलाओं को आज़ादी है या महिला कुछ करना चाहती है तो हमें सपोर्ट मिलेगा उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं मिलता है। कहीं उनको ड्रेसअप को लेकर उन्हें टीच किया जाता है या कहीं उनकी लैंग्वेज को लेकर किया जाता है, कहीं उनकी बुक को लेकर किया जाता है। My parents wanted me to become a teacher and my aim is to become an IAS officer. So that was the case, and by the grace of Almighty, what happened is in the first year I topped in the whole college. Then my parents became more happy. In the second year also I topped. So I became a throughout topper, and then I got a call letter. But in the COVID-19, that is in 2020, the call letter was pending. I got the call, but they were saying that schools were not open right now, so we can't hire teacher also. So I joined one school, but after in COVID, we all know what happened. So in 2021 I got, but before that only some marriage issue and all was there. So I have to resign my job. And after that I am preparing. So I have mainly written that essay according to the UPSC prep, I must say. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. I don't know what I just participated in this competition just to express my feeling, because I was married at the age of 17, and the lack of education that I have been suffered was a big. I have been for a big trauma, because I'm now 30 years old. I'm doing my undergraduate right now. So when I got to know this competition, I was literally very happy that I want to write something about my experience through this competition. So I have wrote something, and I'm very happy that I have been a participation of this competition. When I was in my 12th examination, I got married. And after that, my deliveries and the cesarean deliveries at the young age of 17, I got delivered a cesarean with a girl baby. But I don't know, at that age, I don't know what is all that thing. And I was literally very much enthusiastic about my education. I want to do something more to do. And I have to do something to develop my education like that. I was trying in home itself and doing the online certificate courses and all I was used to do. But I haven't get permission to do the official, like the degree and all. I didn't get permission in my in-laws. But after that, now at this age, somewhat I struggled to do the undergraduate, and I'm now in second year of my graduation. I just wanted to do something. I want to make an identity that Safia Amreen is not a wife of someone, or not a daughter of someone, or not a mother of someone. I wanted to do Safia Amreen as an individual woman. Warm greetings. This is Saira Rafi. First of all, to introduce myself, I've been a teacher for 3 years, and right now I'm just a homemaker. Just telling the word homemaker makes me feel so low, because once we are out of the house, we don't like being confined between the four walls. But still, what I feel is the more we educate ourselves, the more empowering we become. Though I'm being inside the house, but that doesn't stop my thoughts inside the house. I would like to
really thank the organizing committee Awaze Khwateen for organizing this competition. This is giving us opportunities, like girls like me, women like me. We are able to pen down our thoughts. We are able to show the world how capable we are. Like there are so many girls, there are so many talented women out there, but they don't find right opportunities. They just need a little bit of push, I would say. I being a teacher, I really know like how great a woman plays a teacher's role. Nobody can replace a teacher's role in the world, I would say. But though be after marriage, things have totally changed. Like I have to stay at home, and there is a career gap for me. But I still have hope that I will shine one day, and I will be a role model again for my students.